نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ناظرین و سامعین، عرصہ دراز سے میں نے بند کی ہوئی تھی ویڈیو کرنا، اور لیکن حالات واقعات جو اس وقت پاکستان میں سے گزر رہے ہیں ان کے مطابق بات کرنا بھی عین عبادت ہے اور انتہائی ضروری ہے۔ اس میں آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے DGISPR جناب بابر ندیم صاحب کی جو کانفرنس ہوئی 2 دن پہلے۔ اس کو کئی دفعہ سنا، کئی دفعہ اس پہ غور کیا، اور یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک افسوس اور دوسرا ہوتا ہے دکھ۔ افسوس غیروں پر کیا جاتا ہے، جب کوئی غیر انہونی کی بات کرتا ہے تو انسان اس پہ کہتا ہے کہ افسوس ہے آپ کی اس بات پر، لیکن جب کوئی اپنا اسی بات کو کوئی اپنا کرتا ہے جس کے ساتھ انسان کا خون کا رشتہ ہو یا اعتماد کا رشتہ ہو یا ایک عقیدت کا رشتہ ہو، تو اس شخص کو ہمیشہ جب اس کے منہ سے آدمی بات سنتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ آپ کی بات کا مجھے دکھ ہوا ہے۔ حالانکہ سیم بات دوسرے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ دکھ نہیں کہتا، ان کو کہتا ہے مجھے افسوس ہوا ہے۔ تو بابر ندیم صاحب کی اس دن کی کانفرنس میں باقی تمام باتوں کے علاوہ ایک ایسی بھی بات سننے میں آئی جس کا ابھی تک جو ہے میرے جیسا انسان اور میرے جیسے ایسے لاکھوں اور کروڑوں پاکستانی ہیں جو محب وطن ہیں، جو محب فوج ہیں، جن کے دلوں میں ہماری فوج بستی ہے، اور ہم اپنے دل و دماغ سے ان کا احترام کرتے ہیں، یعنی ہر رشتے سے بڑھ کے جو ہے وہ آرمی کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ہر پاکستانی کا قصہ ہے، یہ صرف میرا ہی نہیں ہے، تمام پاکستانی جو مخلص پاکستانی ہیں ان سب کا یہی قصہ ہے۔ تو میرے عزیز، جو بابر ندیم صاحب نے اس دن سازش کی تعریف کی ہے، اس تعریف کو دیکھ کر اور جو انہوں نے اس نیشنل کور کمیٹی کے اجلاس میں اپنی ایک یہ سمجھیں کہ ایک جو انہوں نے اپنے ویوز دیے تھے، جو لکھے تھے، جو منٹس لکھے تھے، اس کو دیکھ کر اور یہ سازش کے ان کی تعریف جو انہوں نے سازش کی ہے، ڈیفینیشن جو کی ہے، اس کو دیکھ کر انتہائی دکھ ہوا ہے۔ اور اس دکھ کے ساتھ ایک دوسری بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ ہم جن کو اپنے ملک اور قوم کا محافظ سمجھتے ہیں وہ بھی سیاستدانوں کی طرح بات کرنے لگ گئے ہیں، اس کا سب سے بڑا دکھ ہوا ہے۔ سوری، میں تمام دوستوں سے اس کے درمیان میں یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا چینل جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ اگر مناسب سمجھیں تو میری اس ویڈیو کے بعد اس کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ جو کوئی مفید قسم کی ویڈیو ہو اس کو میں ہمیشہ اپلوڈ کرتا ہوں۔ میں وہ عام فضول قسم کے یوٹیوبروں کی طرح اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میرا بھی مقصد جو ہے وہ ملک کے اندر ملک اور قوم کے لیے وہ کچھ کرنا ہے جو ہر مخلص پاکستانی سوچتا ہے۔ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو
कवानीन थे इस दुनिया में जो आज से 1500 साल पहले इस दुनिया पे कायम हुए, अल्लाह के रसूल ने कायम किए, मैंने उनका अरबी से उर्दू में तर्जमा करके पाकिस्तान के हालात के मुताबिक, पाकिस्तान की सिचुएशन के मुताबिक मैंने उनको मरतब किया है और पाकिस्तान में लॉन्च भी कर चुका हूँ। और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब तमाम पाकिस्तानियों को पर्सनली पाकिस्तान में आकर जगह जगह जाकर लोगों को दावत भी दूंगा और उसकी आगाही भी दूंगा। इसलिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िले में आपको शामिल होने में आसानी हो सके। एनी हाउ, बात हो रही थी बाबर नदीम साहब की, जो हमारे DG ISPR हैं। एक बात का तो बड़ा अच्छा हुआ कि वो लेटर जिसका सियासतदान कह रहे थे, इमरान खान साहब कह रहे थे, बाकी PTI वाले कह रहे थे, उसको उन्होंने एंडोर्स कर दिया, तस्दीक कर दी उसकी, जिसके लिए जो कल की अपोजिशन और आज की एक करप्ट माफिया की हुकूमत, यानी जो हमारे इस वक्त के क्राइम मिनिस्टर हैं, हम प्राइम मिनिस्टर तो उनको नहीं कहेंगे, वो क्राइम मिनिस्टर कहेंगे, चाहे सारी दुनिया उनको प्राइम मिनिस्टर कहे, हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि उन्होंने हमारे मुल्क को लूटा है, हमारे एतमाद को लूटा, 35 साल तक लूटते रहे। तो कहने का मकसद है कि वो सारे के सारे, और वो जो अभी अच्छी तरह से पैदा भी नहीं हुआ, जो बिलाल है, क्या उसका नाम है, बिलावल, वो भी उस पे, और जितने जरदारी जो करप्शन में सबसे भारी और सारे मुल्क की बीमारी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये तमाम लोग जो थे वो मजाक उड़ा रहे थे कि कोई लेटर नहीं है, ये सब मजाक है, सब झूठ है, फरेब है, फ्रॉड है। वो बात तो DG ISPR ने अपनी इस कॉन्फ्रेंस से साबित कर दी कि वो लेटर है, लेकिन वो मुदाखलत है, साजिश नहीं है। तो इस चीज़ को सुनकर और इससे पहले जो अमल हुआ, जिसमें हमारी अदालतें भी खुल गईं रात 1 बजे, और जो आज तक एक लफ्ज़ अदालतें मुंह से नहीं निकाल सकीं, जो 2014 में इसी क्राइम मिनिस्टर ने 14 लोगों, मासूम लोगों को शहीद किया डायरेक्ट गोलियां मार के, और उसके अलावा 100 से ज़्यादा लोग उस वक़्त ज़ख्मी हुए। और ये आज इन इतने लोगों का जो कातिल है, वो इस वक़्त मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, जिसमें हमारी बहुत सारी ताकतवर शख्सियात की मुदाखलत मौजूद है। उस पे तो अभी हमारा दुख ख़त्म नहीं हुआ था, और ये DG ISPR ने ये कॉन्फ्रेंस करके उस दुख में मज़ीद इजाफा कर दिया। इनकी इस कॉन्फ्रेंस को देख के मुझे एक मिसाल याद आ गई है, और मैं सोचता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ वो मिसाल भी शेयर करूँ। ये मनकूल चीज़ है, एक रवायत है कि पुराने वक्तों में एक अल्लाह के बुज़ुर्ग थे, वली थे, वो बैठे हुए थे अपनी महफिल सजा के, उनके मरीद भी बैठे हुए थे, दीन की बातें चल रही थी। उसमें से एक शख्स उठा और उसने कहा कि पीर साहब, आप जिस मरीद से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी माँ ने शादी कर ली। पीर साहब ने कहा, बुरा किया। लोग जितने भी मरीद बैठे थे एहतरामन चुप रहे, किसी मरीद ने भी उसके आगे कोई बात ना की। वक़्त गुज़रता गया, 3-4 महीने गुज़रे, फिर इसी तरह की महफिल लगी हुई थी, और फिर एक मरीद उठा और उसने कहा कि पीर साहब, आपका वो मरीद जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी माँ ने जो 3-4 महीने पहले जिसने शादी की थी,
उसने तलाक ले ली है। तो पीर साहब ने कहा ये उससे भी बुरा किया। इस वक्त जब लोगों ने ये बात सुनी तो जितने मरीद थे वो चुप न रहे। लोग उठे और उन्होंने उठ के कहा कि हज़रत साहब, आप अल्लाह के वली हैं, नेक इंसान हैं, ये दोनों काम जो हैं, ये दोनों के दोनों काम शरन जायज़ हैं, जिसमें तलाक, शादी करना भी जायज़ है और तलाक लेना भी जायज़ है। तो आपने ये दोनों शरई जायज़ कामों को बुरा क्यों कहा? इसकी ज़रा वजाहत कर दीजिए। तो खैर, बुज़ुर्गों ने कहा कि जब इस बच्चे की माँ अभी नई नई माँ थी और ये बच्चा 2 महीने का था, इस बच्चे की उम्र 2 महीने की थी, तो इस बच्चे का बाप फौत हो गया। खैर, औरत ने कुर्बानी दी और कुर्बानी देकर वो इस बच्चे की देखभाल करती रही। अब इस बच्चे की उम्र 25 साल है और डेफिनेटली माँ की उम्र 50 साल के करीब होगी। जब इतनी कुर्बानी दे दी थी तो फिर थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेती। इसलिए मैंने कहा कि अब लोग इस बच्चे का मजाक उड़ाएंगे तो बेहतर था वो शादी ना करती। इस वजह से मैंने कहा कि उसने बुरा किया है। अब रही ये बात कि जब उसने तलाक ली है तो मैंने ये क्यों कहा है कि उसने उससे भी बुरा किया है। उसकी वजह ये है कि अभी लोग जो थे वो उस लड़के की माँ की शादी की कहानियाँ मुश्किल से थोड़ी थोड़ी भूले थे कि उसने तलाक लेकर इस बच्चे की ज़िंदगी फिर अजीरन कर दी है और लोग फिर से बातें करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि या तो वो शादी ही ना करती और अगर कर ली थी तो फिर तलाक ना लेती। तो ये मिसाल मैंने क्यों दी है कि पहले नंबर पर तो जो हुआ 9 तारीख को, ये 9 तारीख को जो कुछ हुआ, 9 अप्रैल 2022 को जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ, उसकी मिसाल पिछले 75 साल में नहीं मिलती। इससे पहले लोग बेईमानियां करते रहे, सब कुछ होता रहा और मुल्क के अंदर इस करप्ट माफिया ने तकरीबन 35 साल में तमाम अदारे जो हैं उनको करप्ट कर दिया। इदारे ही नहीं बल्कि लोगों को भी, आवाम की भी बहुत सारी तादाद इन्होंने करप्ट कर दी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अदालतों का जब हम देखते हैं कि वो फैसले गलत कर रहे होते हैं तो उन पे हमें अफसोस होता है, क्योंकि वो अब गैरों में जा चुके हैं, वो अपने नहीं रहे, वो उनको हम अपना नहीं समझते, उनको हम इन लोगों के लगाए हुए दरख्त समझते हैं जो अब बड़े हो चुके हैं और इनको अब वो फल दे रहे हैं। इसलिए वो अदालतें जो आज तक उन 14 मासूमों के कत्ल पर सो मोटो नहीं ले सकी, उन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर विद इन 5 मिनट सो मोटो ले लिया। अफसोस उन पे होता है, दुख नहीं होता, उन पे अफसोस होता है, क्योंकि उन पे दुख करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनसे हमारा तल्लक नहीं है। वो सारे के सारे इम्पोर्टेड हैं और इसी वजह से उनके फैसले भी इम्पोर्टेड होते हैं। एनी हाउ, दुख किन से हुआ? जो हमारी दूसरी शख्सियात हैं। एक तो हम उनको, जितने भी पाकिस्तानी हैं, तमाम पाकिस्तानी, ये 22 करोड़ आवाम उनके साथ खड़ी होती है, एहतराम में भी, जंग में भी, हर जगह पे खड़ी होती है। उसकी वजह क्या है कि हम सब समझते हैं कि इस मुल्क और कौम की हफाजत की ज़मानत उन्होंने ले रखी है, वो ज़ामन है हमारी इस हर चीज़ के। लेकिन दुख हुआ
जब ये जामन उस साजिश पर चुप रहे जो मुल्क के अंदर बोई गई, और एक ऐसे शख्स को इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर की टोपी उस शख्स के सर पे रख दी गई जो 16 अरब से ज्यादा करप्शन के केसों में मतलूब है, जिसने जो 14 मासूम लोगों के कत्ल में मुलव्वस है, जो 100 से ज्यादा मासूम लोग जब वो अपने शुहदा की अदालत से इंसाफ लेने के लिए आगे बढ़े तो उनको जख्मी किया गया, उनको जेलों में बंद कर दिया गया, उनके खिलाफ झूठे केस बना दिए गए। जिन अदालतों ने आज तक वहां पे कुछ नहीं किया, इसलिए हम उन पे अफसोस नहीं करते। दुख हुआ है हमारी अपनी एस्टेब्लिशमेंट पर हमें, और ये हम जो कुछ भी कह रहे हैं हम दुख से कह रहे हैं। हम आज भी उनका एहतराम वैसा ही करते हैं जैसा इस 75 साल से करते आ रहे हैं, क्योंकि एक ही अदारा जो था वो बचा हुआ था पाकिस्तान में। लेकिन दुख इस चीज का हुआ है कि इस करप्ट माफिया ने उस अदारे के अंदर भी नकब लगा रखी है। इस अदारे ने इस करप्ट माफिया ने इस पाक अदारे को भी नकब लगाई है, इसके अंदर भी सुराख कर दिए हैं, जो अफसोस हुआ। अब आता हूं मैं उस तरफ जो बाबर नदीम साहब ने एक मुख्तलिफ डेफिनेशनें की हैं कि साजिश और चीज़ होती है, मुदाखलत और चीज़ होती है। ये बात अगर कोई हल चलाने वाला, कोई ज़िम्मेदार, कोई आम मजदूरी करने वाला, कोई रोड के ऊपर मजदूर ये बात करे तो वो बात तो समझ में आती है। लेकिन हमारे मुल्क की वो क़यादत जो हमारे मुल्क की जामन और इस कौम की जामन है, इनकी हिफाजतों की जामन है, अगर उसका एक सरबराह उठ के इस किस्म की बात करे तो फिर दुख तो होगा ना। अपने हैं, और वो अपने हैं जिनको हम दिलो जान से चाहते हैं। ये पिछले दिनों जिनके सर पर इन्होंने वज़ीर आज़म की टोपी रख दी है, ये लोग तरह तरह की बकवास करते थे और ऐसी ऐसी गालियां देते थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और सबको, और DGISPR को, कि जो एक आम इंसान किसी को गाली दे तो उस आदमी को कत्ल कर दे दूसरा शख्स। लेकिन ये कैसे, हुकूमत भी सुनती रही, हमें हुकूमत पर भी दुख था, अफसोस था। हम हुकूमत को भी उस वक्त कहते थे कि लानत है आप लोगों पर, ये इमरान खान की हुकूमत को हम कहते थे। मैंने बहुत सारे लेटर लिखे, मैंने पोर्टल सिस्टम में केस फाइल किया कि लानत है आप लोगों पर, आप हुकूमत में हैं, आर्मी को गालियां दी जा रही हैं, आप लोग इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? किसी ने मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। लेकिन दुख इस वक्त हुआ, ये सिर्फ हमारी आर्मी हदूद की जामन नहीं है, ये एक ऐसा अदारा है जो अंदरूनी और बरूनी तमाम किस्म के खतरात की तरफ से जामन है इस मुल्क का, इस कौम का, हम सब का। हमें अफसोस हुआ कि जब दुनिया के करप्ट तरीन इंसान के लिए वजीर आज़म का नाम सेलेक्ट किया जा रहा था, नामजद किया जा रहा था, जिसके लिए अदालतें रात 1 बजे लग गईं, जिन अदालतों को आज तक मासूम कत्लों पर सो मोटो लेने का जो है वो शर्फ हासिल नहीं हुआ और ना ही कभी होगा, वो तो लग गई थी। लेकिन आप तो जामन थे ना, आप तो जामन थे हमारे, आप तो इस मुल्क और कौम के जामन थे। फिर आपने ऐसा क्यों किया? आप क्यों नहीं रुके? आपने क्यों नहीं रोका? ये रोकना आप पर फर्ज था, ये रोकना, इस बेईमानी को रोकना आपकी ड्यूटी में शामिल है। हजरत साहब, हम रोते हैं इसलिए, हम इसलिए आपको कोस रहे हैं क्योंकि हमारा तल्लक आपसे रिश्ता बहुत पक्का है। हमारा जो रिश्ता आपके साथ है वो किसी और करप्ट इंसान के साथ नहीं है। आप तो लोग करप्ट नहीं हैं, एक ही तो अदारा बचा था, आप भी इनकी धौंस में आ गए। और अब दूसरी बात यह है, मुझे इस वक्त दुख हो रहा है कि मैं ये बताऊं
کہ साजिश क्या होती है और मुदाखलत क्या होती है। आपके ही मरासले में, आपकी ही उस जो मिनट्स हैं उस मीटिंग के, उसमें लिखा हुआ है कि जो ज़बान इस्तेमाल की गई है इस लेटर में वो सफारती ज़बान नहीं है, और आपने ही लिखा है कि ये एक खुली मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, जिसको किसी भी सरकमस्टेंसेस में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये आपका ही लिखा हुआ है ना जी, ये मैं अपने आप पास से नहीं कह रहा हूँ, आपके उस अलामिये को बयान कर रहा हूँ जो आपने अपना बयानिया दिया इस नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद। तो हजरत साहब, अब जो मैं कहने लगा हूँ इसका मुझे दुख भी है, लेकिन मैं कहने से बाज नहीं रह सकता। ये मेरी मजबूरी है, इसलिए मजबूरी है कि मुझे आपसे अकीदत है, मुझे आपसे मोहब्बत है। मैं सच्चे दिल से आपको मुल्क और अवाम का ज़ामन मानता हूँ, इसलिए ये दुख की बात करने लगा हूँ कि जनाबे वाला जो इल्म है, जो तालीम है, इससे इसकी तारीफ इस तरह है कि पहले साजिश होती है। पहले क्या होता है? पहले साजिश होती है। उस साजिश को जब अमली जामा पहनाया जाता है तो उसको बोलते हैं मदाखलत। यानी पहले क्या होता है? साजिश। साजिश के बाद जब उस साजिश को अमली जामा पहनाया जाता है तो उसको कहते हैं मदाखलत, जिसका आपने एतराफ़ किया कि खुली मदाखलत हुई है पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में, जिसको किसी सूरत भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो हजरत साहब, आप जो पहला हिस्सा है उसको तो आपने कह दिया कि ऐसा हमने कुछ लिखा ही नहीं है। ये दुख हुआ है। इस दुख की वजह से एक पूरे के पूरे लोग इस वक्त जो बातें कर रहे हैं ना, इस वक्त जो मुखलस पाकिस्तानी बातें, जो प्रोपोगंडर लोग हैं उनकी मैं बात नहीं करता हूँ। जो प्रोपोगंडा करने वाले हैं वो बहुत सारे वो इंडिया से बैठ के भी कर रहे हैं। वो आपके ये जिनके सरों पे आपने टोपी रखी है ना प्राइम मिनिस्टर की, ये जो जिसको हम क्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ये क्राइम मिनिस्टर की पूरी टीम कर रही है। वो मोहतरमा जिसकी 14 फुट लंबी ज़बान है, मरियम नवाज की, ये उसके जो ग्रुप है ना वो गालियां दे रहे हैं आपको। हम गालियां नहीं दे रहे, हम आपको आपकी जो ड्यूटी है वो याद दिला रहे हैं, क्योंकि आप गैरतमंद हैं। हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी आर्मी की गैरत में कोई ज़रा सा भी फ़र्क आए, क्योंकि आप सरमाया हैं, आप ज़ामन हैं इस मुल्क के। ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई नेमत है। मेरे हज़ारों क्लिप हैं, आप निकाल के देख लें। मैंने हर क्लिप में हमेशा कहा कि जिसने मुजाहिद बनना है, जिसने जिहाद करना है, वो आर्मी में दाखिल हो। हम तो आपको मुजाहिदीन समझते हैं, हमको दीन के मंबे समझते हैं आपको। ये क्या आपका फ़र्ज़ नहीं था कि इस करप्ट माफिया को पीछे किया जाता? इमरान खान के साथ हज़ारों इख्तलाफ है, और मेरे अगर यूट्यूब में कुछ जाता है, यूट्यूब चैनल पे जाता है, तो वो जाके देख ले कि कोई ऐसा मेरा क्लिप नहीं है जिसमें मैंने इमरान खान की हुकूमत पे हज़ारों लानतें डाली हुई हैं। इसलिए कि इमरान खान तो ईमानदार था, लेकिन तमाम चोरों को साथ ले आया। लेकिन आज इस बात का भी दुख हुआ कि जब इमरान खान की ज़बानी ये भी पता चला कि वो जो सारे चोर डाकू आए थे उनको भी कोई शख्सियत लेके आई थी, किसी शख्सियत ने झोली में डाले थे इमरान खान की। ये भी एक दुख हुआ। तो अब हम क्या कहें? आप ही हमें बता दें कि साजिश किसको कहते हैं और मुदाखलत किसको कहते हैं। मुदाखलत साजिश को अमली जामा जब पहनाया जाता है तो उसको बोलते हैं मुदाखलत। ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं जनाब बाबर नदीम साहब, ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं और हर पाकिस्तानी से बेहतर जानते हैं। मुदाखलत का मतलब है कि साजिश को अमली जामा पहना दिया गया। ये किस तरह ज़मीर ने गवारा किया कि एक करप्ट तरीन इंसान को, एक कातल इंसान को हमारी पाक आर्मी उठ के सलूट करे? ये कैसे मुमकिन है? हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते।
یہ ہے ہمارے دکھ کی بات، جس دکھ سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کیا مجبوریاں تھیں؟ آپ تو ضامن ہیں، ہماری حفاظت کے ضامن ہیں، ہمارے ملک کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ اگر آپ نے ہی گھٹنے ٹیک دیے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں، اور میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں، تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی بد زبانی ہماری اس آرمی کے لیے استعمال نہ کی جائے۔ بس ان کو، شیطان بڑا شاطر ہے، اس نے شاید ان کو بھی یہ بلا دیا تھا کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، آپ اپنی ڈیوٹی کا خیال کریں، اسی میں آپ کی عزت ہے، اسی میں آپ کا احترام ہے، اور یہی چیز ہے جو پاکستان کو جوڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے آپ یہ حرکت دوبارہ اس قسم کی نہ کریں۔ اب پہلا تو آپ لوگوں نے وہ کیا کہ اس کے سر پہ ٹوپی رکھ دی، اور دوسرے نمبر پر آپ نے کانفرنس کر کے یہ بتا دیا کہ سازش نہیں ہوئی۔ دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ سازش کس کو کہتے ہیں؟ آپ کیا کسی ڈکشنری سے مجھے بتا سکتے ہیں کہ سازش اور مداخلت میں فرق کیا ہے؟ حضرت صاحب، سازش پہلے ہوتی ہے، مداخلت بعد میں ہوتی ہے۔ یہ لازم و مظلوم ہے، آپ نے ان کو الگ کیسے کر دیا؟ کیا ہو رہا ہے؟ اب دکھ ہو رہا ہے، دکھ آپ کی باتوں سے دکھ ہو رہا ہے۔ خدا کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، خدا کرے کہ ہماری آرمی اپنی عزت اور غیرت اور اس پاکستان کی اس ذمہ داری کو جو انہوں نے سنبھال رکھی ہے، جس کے یہ ضامن ہیں، ان کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ جو اس سے پہلے ہو گیا اس کو ہم بھول جائیں گے، آپ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے بھول جائیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ ہمارا ایک ایسا رشتہ ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا، جو ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بابر ندیم صاحب، میں ویسے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ آپ ضرور دوبارہ سے کانفرنس کریں اور اپنی عزت اور غیرت کو برقرار رکھتے ہوئے لوگوں کو بتائیں کہ سازش اور مداخلت یہ لازم و مظلوم ہے۔ یہ میرا خیال ہے ہم سے بہتر ہے کہ آپ بتائیں، اور آپ لوگ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں جہاں تک آپ جا چکے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ جو ان کے لیے میں اب الفاظ کیا استعمال کروں، ان کے لیے کوئی بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے جو دنیا کا سب سے برا ترین لفظ ہو، وہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ پیسے کے لیے ٹھیک کہا تھا کسی برٹش نے اور امریکی نے کہ یہ پاکستانی پیسے کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں، اور یہ جو آپ نے ابھی بٹھائے ہیں اس ملک کی سربراہی جن کو دی ہے، یہ بالکل ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، یہ چیز یہ کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم ان کی بات نہیں کرتے، نہ ہم عدالتوں کی کرتے ہیں، عدالتوں پہ ہم افسوس کرتے ہیں، لیکن ان کا ہمیں دکھ نہیں ہوتا۔ وہ کرپٹ مافیا نے ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور ان کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں تو ظاہر وہ انویسٹمنٹ کا صلہ دیتے ہیں، لیکن آپ تو کسی سے لے کے نہیں کھاتے، آپ تو ملک کی ضمانت کی تنخواہ لیتے ہیں، آپ ملک کی ضمانت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آپ مجاہدین ہیں، قرآن کے مطابق آپ مجاہدین ہیں، تو آپ کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ذاتی طور پہ بھی ریکویسٹ ہوں اور تمام پاکستانیوں کی طرف سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب مہربانی کریں، آپ اپنی اصلی ڈیوٹی پر آ جائیں، آپ سیاستدان نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اس ملک کو اور ہماری پاک آرمی کا احترام کرنے اور اس ملک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کا اور ہماری آرمی کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔